short phone call change your way in the IPL 2025? Uh, of course, I mean, every player is waiting for that one chance or one opportunity. And like I have said before, once not picked in the IPL, I was looking forward for other assignments. Important for me was to keep playing cricket. At that point of time, we were playing Ranji Trophy, uh, and Mumbai had qualified for knockouts. So that was the most important thing on my mind. But yes, of course, 1 month down the line, there was IPL which was coming up, and uh, the moment Zahir Khan called me, and the conversation was straight away about uh, what needs to be done when you're part of the team. So he told me, he basically informed me that they are looking at me as a potential replacement because quite a few bowlers were injured. So there could be a chance that arrives, and of course the call was being taken just right before the start of the tournament. Like I said, important for me was to stay in the moment and uh, keep thinking about the games that I was playing. But of course, subconsciously, I also was preparing for the IPL on free days, telling myself that okay, I have to bowl with white ball after the commencement of the Ranji Trophy. So that way, I started preparing myself. Shardul, you slammed the impact rule and also the pitches right now, that 250 kind of pitches that circulating right now. So what do you think that, what's your take on actually that in the last interview you slammed all over Thailand? So what kind of pitches right now you want, and how do you think that it's a lot of unfair to the bowlers? So what's your say on that? Basically, it is not what I want, but it is what the bowlers want. I'm talking on behalf of all the bowlers. A lot of them might not be outspoken, or they might not get a chance to speak in front of media or give interviews about the pitch conditions. But we have already seen in the rule change and the impact player rule coming in. So every team is potentially playing extra batter, especially while chasing, or even let's say you're batting first, then everyone is going in with that depth because they have now an opportunity to change the batter and call a bowler while defending, or vice versa. So all that the bowlers are asking is to prepare the pitch in such a manner that the game hangs in balance, and it should not be just one sided where batters are coming and smashing us, because all we want is fair chance and fair opportunity in the game. Shardul, IPL 2023 4 matches 1 wicket, first 4 matches IPL 2024 first 4 matches 1 wicket, and in this IPL 2025 you just pick 4 wicket in just your 4 overs. So anything you change in the strategy or the bowling style or anything else? No, I haven't changed anything. I'm just playing with lot of freedom, and like I said in my uh, man of the match interview, that even I want to go hard at batters if they are trying to come hard at me. So that's the only psychology that I have right now. And also that you said in the last interview that when you signed the contract for the E6 this year, so I mean you hadn't signed, but there was an exception that if I get a chance in the IPL, then I won't play and IPL will be my preference. So you have any idea, you have the idea that yeah, I will make it to the IPL this time, that's why you make this exception to that contract? शाहरुख, आपने जैसे कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल आया वो गेंदबाजों के लिए ठीक नहीं लग रहा आपको, मतलब उससे नुकसान होता है गेंदबाजों को, तो क्या लगता है कि फेयर प्ले नहीं है इम्पैक्ट प्लेयर का इस तरह से आना गेंदबाजों के लिए? जी, इम्पैक्ट प्लेयर का आना तो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी, और गेम्स काफ़ी चेंज होते हैं, लेकिन जो 250 से ज़्यादा रन बन रहे हैं, और स्पेशली ये रूल चेंज आने के बाद, वो सिर्फ ये रूल चेंज के वजह से नहीं है, बट जिस तरह से पिचेस भी बनाए जा रहे हैं उसके वजह से है. तो हम बस यही कह रहे हैं एज अ बॉलिंग यूनिट कि हमें फेयर एंड स्क्वायर चांस दो कि जहाँ पे हम बैट्समैन को भी आउट कर सकते हैं. शायद इसीलिए इंटरनेशनल T20 में इम्पैक्ट प्लेयर का नियम नहीं है. जी, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो तो ICC का डिपार्टमेंट है. जब पिचेस ज़्यादा टर्निंग होती हैं या बहुत ज़्यादा पिच को मदद करती हैं, तो देयर इज अ टर्म दैट बोलते हैं कि डॉक्टरेट पिचेस हैं, बट जब ये पिचेस एकदम पूरी पाटा बनाई जाती हैं 250 से 260 के लिए, तो इसको भी डॉक्टर
डॉक्टर्ड पिचेस ही बोलेंगे? आपको कहना है तो आप कह दीजिए। नहीं, आज पर प्लेयर्स मतलब जो ये मेरे हिसाब से या तो पिच बैटिंग होता है या बॉलिंग होता है या दोनों के लिए बराबर होता है। डॉक्टर्ड है या नहीं है वो मतलब डॉक्टर कैसे कर सकते हैं, दोनों टीम को खेलना है। अगर हम टर्निंग ट्रैक बनाएंगे तो हमें भी तो बैटिंग करनी है। संतोष सर, We have seen that bowlers who bowl at 140, 145 have gone for 75 or in 4 overs, and there are, bowlers like you and Swing who have really got wickets and also bowled within the economical limit. So, what do you think is the way of going for a pace bowler in this IPL where so many runs are being scored? I think it's all part of the preparation. So the strength lies in how well do you understand your own game and what is the best possible way that you can bowl on that particular day, looking at the pitch conditions, looking at the situation of the game and which batter is playing. So I don't know about others, but what I try to do is just give myself a best chance to perform. So that's what I think, and usually I figure out what to do in the game itself, looking at the pitch conditions and the situation, like I said. सर शार्दुल, आप एलएसजी के पोस्टर पे कहीं नहीं है, लेकिन अब आप पोस्टर हुआ है, कैसा लग रहा है? जी, ये मेरे ख्याल से पोस्टर्स तो काफ़ी पहले बनाए जाते हैं, बट आ जाऊंगा अगर अभी नहीं है तो। लेकिन नाम अभी एलएसजी है, बट पहले मैं पीएसजी के लिए भी खेल चुका हूँ, दैट इज़ पुणे सुपर जायंट. सो आई एम थैंकफुल टू मिस्टर संजीव Goenka also that he has thought about me when I was not part of the IPL, considering the amount of injuries that happened. So I am pretty happy to join this RPSG group again, which owns the LSG. So pretty happy about it. That's what I can say right now. What's your plan for the home matches and also the plan of the team? प्लानिंग तो सर कोचेस करते हैं ऑनेस्टली, हमें मैच में जाने से पहले पता लगती है. सलाइवा पे जो बैन लगा था वो अभी सीजन के पहले हटाया गया है. क्या क्या? सलाइवा. हाँ, तो अभी सलाइवा यूज कर सकते अच्छी बात है. तो उससे क्या बहुत ज़्यादा रिवर्स स्विंग हो रही है या बॉलर्स को कितनी हेल्प मिल रही है, और जब सलाइवा पे बैन लगा हुआ था तो क्या मुश्किलें हो रही थी? और एक दूसरा सवाल है कि इस बार ड्यू को देखते हुए 2 बॉल यूज करने का भी एक नियम आया है. वो अभी तो बहुत ज़्यादा टीमों ने यूज नहीं किया है, बट आपके हिसाब से जो 2 बॉल का है ड्यू की वजह से, तो ये मतलब बॉलर्स के लिए कितना हेल्पफुल है? जी देखिए, सलाइवा बैन था कोविड के रीजंस के वजह से, उसको हमने अभी गेम में वापस लाया है. तो ये अच्छी बात है कि हम जैसे गेम चलते आ रहा है सालों साल, वैसे ही उसको फॉलो करेंगे अब से भी. और जहाँ तक ड्यू की बात है, अगर बॉल गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा तो अंपायर डिसीजन ले सकते थे पहले भी, अभी उसको ऑफिशियल कर दिया है. 2 बॉल यूज़ नहीं होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बॉल चेंज किया जाएगा और दूसरा बॉल आएगा. तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि 2 बॉल यूज़ करना ही है. ड्यू ज़्यादा होने के कारण अगर बॉल गीली हो जाती है और खेलने लायक नहीं रह जाती है तो अंपायर उसे चेंज करेंगे. ये है. उससे बॉलर्स को क्या लाभ मिलेगा? ग्रिप के लिए अच्छा होता है बेसिकली. जितना बॉल ड्राई रहेगा उतनी ज़्यादा ग्रिप करेगी बॉल, नहीं तो हाथ से फिसलती है ड्यू के कारण. जो बॉल की सीम होती है वो गीली हो जाती है तो उससे बॉल फिसलती है. शार्दुल, एक क्वेश्चन था कि अभी आप टीम से जुड़े हैं, ठीक है ना? अभी भी टीम में कुछ बॉलर इंजर्ड है. आकाशदीप अभी टीम से जुड़े नहीं है, मयंक यादव भी नहीं है. तो आप टीम को किस तरह लेते हो? आप किस तरह समझते हो कि आपकी एलएसजी की बॉलिंग यूनिट किस तरह खेलेगी कि आप प्ले ऑफ में पहुँचेंगे? आपको लगता है ये बॉलिंग लाइनअप प्ले ऑफ में पहुँचेंगे? ठीक है जी, एज अ टीम मैं ये मानता हूँ कि आज आपके सामने क्या है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है. तो आज हमारे टीम में ये बॉलर्स है तो ये बॉलिंग यूनिट को लेके हम कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं इसी के ऊपर ध्यान है. और कभी भी कोई भी प्लेयर ये नहीं सोचता है कि अरे आकाशदीप नहीं है, मयंक यादव नहीं है तो हमारी बॉलिंग अटैक वीक हो गई है. आईपीएल में 25 का स्क्वाड होता है, सारे 25 के 25 बराबर है. हाँ, आपके प्रीवियस परफॉर्मेंस के वजह से आपके टैलेंट के चलते आपको मौके कम ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन जब आप मैच में उतरते हो तो इस चीज़ का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है. परफॉर्मेंस
खुद की कॉन्फिडेंस और वो दिन आपका कैसा रहा और आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है टूर्नामेंट में, उस पर निर्भर करती है। तो ये लोग क्या जुड़ेंगे टीम से भी, आपको लग रहा है कि कुछ जी वो मुझे नहीं पता, वो NCA से जब उनको क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद शायद वो जुड़ेंगे। आप लोग पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं काना के होम ग्राउंड पर ही, आप लोग की क्या एनालिसिस है, पिच का बिहेवियर किस तरीके से रहेगा जो आप लोगों ने अभी? वो हम बता नहीं सकते ना भैया, एंटी करप्शन के अंदर आ जाएगा। विकास, आपको कोई क्वेश्चन? अभी तक हम 2 मैच खेले, एक जीते एक हारे। अब हम अपने होम ग्राउंड में खेलने चल रहे हैं। पिछली बार भी हमारा प्रदर्शन होम ग्राउंड में 100% नहीं रहा है, ठीक है, मिला जुला कह सकते हैं। तो इस बार के लिए क्या रणनीति है, क्या हम सोच के चल रहे हैं? मुझे लगता है होम ग्राउंड में सबको जीतना ही है, ये एडेड प्रेशर बाहर से आता है, लेकिन ऐसे कोई सोचता नहीं है। एंड ऑफ द डे ये गेम ऑफ क्रिकेट है, तो हो सकता है कि हम होम मैच नहीं जीते लेकिन अवे मैच सारे जीत जाए। ऐसे भी सीज़न आते हैं IPL में, ऐसा नहीं है ज़रूरी है कि होम मैच है तो जीतना ही है, गेम में हार जीत लगी रहती है। हाँ, बट होम कंडीशंस में हम प्रैक्टिस करते हैं, उस वजह से हमें सराउंडिंग्स का बेहतर आइडिया होता है, तो उसे अगर हम बेहतर यूज़ करेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं एक एंड में जाकर के मैच जीतना है, तो चाहे वो 1 रन से हो या 10 रन से हो, 2 पॉइंट लेना ज़रूरी है। तो सारे टीम यही सोचते हैं कि उस तरीके से हम होम एडवांटेज लिया जाए, बट सामने वाले भी खेलने ही आए, तो एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छा क्रिकेट का गेम होना। LSG के फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप सीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी, लखनऊ में हम जब भी आते हैं तो हमने देखा है कि हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी रहती है लोगों की। मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एयरपोर्ट से उतरते और होटल में पहुंचने तक या ग्राउंड में भी सारे लोग काफ़ी प्यार से नमस्ते करते हैं, तो अच्छा लगता है। और बाकी मेरा LSG के लिए लखनऊ में पहला ही मैच रहेगा, तो क्राउड की सपोर्ट तो मतलब हज़ारों की तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही कहूँगा फैंस के लिए कि होम टीम को सपोर्ट कीजिए। आप जितना सपोर्ट करोगे, आप जितना आवाज़ करोगे, जितना प्यार दोगे हमें, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इसीलिए होगी क्योंकि जब भी गेम में टीम नीचे रहती है सामने वाले टीम से, तो जितना क्राउड सपोर्ट होता है उसी से फुर्तीलापन भी आता है और प्लेयर कहता है कि चलो हम और ज़ोर लगाएंगे। और कभी एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे गेम चेंज हो जाता है, तो ये क्राउड की सपोर्ट भी उतनी ही ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन अभय, लास्ट क्वेश्चन अभय। LSG की टीम को हम जब देखते हैं तो इसमें अर्शिन है, अंडरवेकर है, आवेश खान है। उसमें हम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग से देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका है। हाँ। उसके बारे में बताइए कि आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में टीम से बात करते हैं। और उसी के साथ इंडिया के एक बहुत ही अच्छे बॉलर रहे हैं, उस टीम के कोच हैं मिस्टर ज़हीर खान, उनके बारे में मतलब क्या बातें रही हैं उनसे अब तक गाना के स्टेडियम को लेकर? ज़हीर खान जी से तो मुझे भी सीखने ही मिल रहा है, और 1-2 और फ्रेंचाइजी का भी कांटेक्ट हुआ था कि आप हमारे टीम में ज्वाइन होना चाहोगे क्या, लेकिन पहला मुझे सबसे पहले LSG ने पूछा और ज़हीर खान जी थे यहाँ पे, तो मैं भी यही सोचकर यहाँ पे आया कि मुझे उनसे भी सीखने मिलेगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है IPL में इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप जीताया उन्होंने, तो ये इसका ये इनवैल्यूएबल है। तो उनसे जितना मुझे भी सीखने मिलता है उतना मैं सीखना चाहूँगा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करते रहता हूँ जो यंगस्टर्स है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी आज ना कल इंडिया के लिए खेलेंगे। तो एंड ऑफ द डे तो हमें हमारे देश की टीम को अच्छा करना है, तो चाहे वो मेरा भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो मैं उनके साथ शेयर करते रहता हूँ। और मेरे जैसे कई और प्लेयर भी है, अर्शिन तो बैटिंग ऑलराउंडर है, ओपन करते हैं, तो वो निकोलस पूरन से भी बात करते हैं और बाकी ओपनर से भी बात करते हैं, मार्करम से, मिचेल मार्श से, कि वो कैसे पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। वैसे राज मुझसे बात करते हैं, ज़हीर खान जी से भी बात करते हैं। तो और ये सारी चीज़ें वो अप्लाई भी करते हैं नेट्स में जाके प्रैक्टिस के दौरान, तो सीखेंगे। जब उनको मौका मिलेगा तो मैं यही होप करूँगा कि वो भी बहुत अच्छा करे,
जो प्रैक्टिस मैच हम खेले उसमें दोनों ने अच्छा किया है, आई मीन सारे यंगस्टर्स ने अच्छा किया है, हिम्मत ने भी अच्छा किया है, आर्यन जोएल ने अच्छा किया है। तो एज ए यूनिट मैं कहूँगा कि हम राइट डायरेक्शन में है और जब भी किसी को मौका मिलेगा सारे ही कॉन्फिडेंट है कि अच्छा करेंगे।